this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to share with you a newly added topic, that is energy equation in the subject heat transfer for GATE 2021. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So before going to start the lecture, I want to mention that this lecture is covered by the book Introduction to Heat Transfer by the well-known faculty of the IIT, that is SK Soam. So the link of the book is given in the description box and it is also available on my Telegram. So you can go and download this book from there. So now start with the lecture. So student, by this lecture you will be able to understand the mathematical and physical implications of the governing equation, namely energy equation in the force convection. So to determine the rate of heat transfer from or to a solid body in the stream of fluid, one has to know the value of temperature gradient, that is in the direction of heat flow at the solid surface. Since the conduction is the only mode of heat transfer at the surface, this required the information about the temperature field in the fluid stream surrounding the solid body. So in this we will basically see the temperature distribution. We are going to see basically the temperature distribution in the fluid stream, which is obtained from the solution of the equation of the conservation of energy in the flow. So this type of equation is called as energy equation. So for the derivation of the energy equation, we have to consider the fluid element in the motion of closed system approximately a rectangular Cartesian form. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जो कि होगा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन फ्रेम में. उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स for the element closed system, for the element of the closed system or control volume. So in that case, the first law of thermodynamics is the del Q by del T is equal to total derivative of dE upon dt plus del W by del T. ठीक है, here the del Q and del Q and del W represent the amount of heat added to and the work done on the system. So let us consider a small fluid element in the motion as a closed system. So approximately this closed fluid element is the rectangular Cartesian coordinate, and we are going to apply first the thermodynamic law of the first law of the thermodynamic on the closed element. ठीक है, element of closed system. Okay, so we have to first write the first law of thermodynamics, that is del Q by del T is equal to dE by dt plus del W by dt. Here the dQ or del W is represent the amount of heat added to the work and the work done from the system during the time interval dt. ठीक है, during the time interval dt. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dQ by dt रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट कितना ऐड किया है, और dW अपॉन dt रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन फ्रॉम द सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt. और यहाँ जो हमारा dE by dt है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच कंसिस्ट ऑफ लोकल एंड द कन्वेक्टिव चेंज. ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ हमें अप्लाई करना है. तो यहाँ हमारे पास फ्लूइड एलिमेंट है, एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. इसमें हमने फ्लक्सेस का मोशन देखा रखा है कि कौन से पोर्शन में कौन से एरिया से जो फ्लक्स इनपुट हो रहा है यहाँ एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ से आउटपुट हो रहा है फ्लक्स
x डायरेक्शन along the x डायरेक्शन आफ्टर डेल्टा x डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फिगर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं इसके लिए। तो if the transfer of heat is by the radiation is neglected, if we neglected the transfer of heat by the radiation, then obviously the transfer of heat is occurred by through the कंडक्शंस। ओके, किससे हो रहा है? कंडक्शन से। अगर हम वो कंसीडर नहीं करते हैं तो हमारे पास जो होगा वो कंडक्शन से होगा, और कंडक्शन हम किससे कैलकुलेट करते हैं? फोरियर्स लॉ से। तो फोरियर्स लॉ अगर हम फ्लूइड एलिमेंट का लिखें, कौन से फ्लूइड एलिमेंट का, चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लास्ट स्लाइड चलते हैं, जैसे इरेज ऑल पेन स्लाइड यहाँ पे। तो ये कौन सा रीज़न है? हम इस रीज़न से देख रहे हैं, कंडक्शन अप्लाई करेंगे, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। तो ये वाला कौन सा रीज़न होगा हमारा? कौन सा? ADHE, इस अलॉन्ग डायरेक्शन में देख रहे हैं। और फिर एंटर इधर से करेगी और एग्जिट कहाँ से करेगी? BCGF से। ठीक है, तो अब आ जाइए हम इक्वेशंस लिखते हैं। लाइक यहाँ पे हमने लिखा QX along the x direction heat flux is equal to minus K del T by del X, और कौन सा एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं? कौन सा एरिया? डेल्टा Y डेल्टा Z। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अगर हम दूसरे एग्जिट फेस पे देखें, जब हीट कंडक्शन आउट हो रहा है, एलिमेंट कौन सा होगा? BCGF। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा इनलेट ऐड होके हमारा डिफरेंशियल फॉर्म उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हायर ऑर्डर को हम इसी जो QX को है हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे, और जो हायर ऑर्डर टर्म होंगे उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो QX प्लस डेल्टा X इज इक्वल टू QX प्लस डेल बाई डेल एक्स QX डेल्टा X। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जब हीट कंडक्टेड आउट होगा। ठीक है, फिर देयरफॉर द नेट, अगर हम बात करें, अब जो हमें इनलेट मिल गया, अब आउटलेट मिल गया, तो हम नेट करेंगे। क्या हो गया? QX माइनस, हमने इनलेट माइनस किया, QX प्लस डेल बाई डेल एक्स QX डेल्टा X माइनस किया। ठीक है, अब यहाँ को एक्सप्रेशन खोलेंगे तो ये QX कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा। ये एक्सप्रेशन बचने के बाद हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो है सिंपली हम QX की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमारा एक्सप्रेशन जो फाइनली हमें मिलेगा वो हो जाएगा ये वाला, डेल बाई डी एक्स K डेल टी बाई डी एक्स इंटू वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ डेल्टा X यहाँ पे इंक्लूडेड था, और यहाँ से हमने जब Q की वैल्यू ऐड की तो हमारे पास डेल्टा Y और डेल्टा Z हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा वो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, बात करते हैं यहाँ वॉल्यूम की। मैंने बात बता दी आपको कि वॉल्यूम कैसे हो गया। वॉल्यूम इज डेल्टा X डेल्टा Y डेल्टा Z। तो वॉल्यूम ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। सिमिलरली हम नेट रेट जो है दूसरे का फॉर्म एलिमेंट्स के लिए लिख लेंगे इन डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, लाइक जो Y डायरेक्शन और X डायरेक्शन के लिए, तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे पास? पहला अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई K del T by del Y delta V, and similarly for due to the surface EFGF and DGBA it will become, जो Z डायरेक्शन में होगा वो होगा डेल बाई डेल Z K del T by del Z। एक बार और मैं करती हूँ। Hello everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to share with you a newly added topic, that is energy equation in the subject heat transfer for GATE 2021. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical
articles, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So before going to start the lecture, I want to mention that this topic is covered by the book Introduction to Heat Transfer by the well-known faculty of IIT, that is S.K. Som. So you can get the link of the this book in my description box, or you can get this book PDF PDF of this book in my Telegram channel. So go and download from there. So without wasting your time, let's get started with the lecture. So student, by this lecture you will be able to understand the mathematical and physical implementations of governing equation, namely energy equation in force convection. So to determine the rate of heat transfer from or to a solid body in a stream of fluid, one has to know the value of temperature gradient, that is in the direction of heat flow or at the solid surface. So since the conduction is the only mode of heat transfer at the solid surface, so this requires the information about the temperature field in the fluid stream surrounding the surrounding of the solid body. So in this we will basically see the temperature distribution in the fluid stream, which is obtained from the solution of the equation of conservation of energy in the flow. So this type of expression we get from this is called energy equation. So for derivation of the energy equation, we have to consider first the small fluid element in the motion as a closed system, which includes which is approximately a rectangular Cartesian frame of coordinates. Okay? And this the first law of thermodynamics for the elemental closed loop, we can write it as, we have to write the first law of thermodynamics for the rectangular or elemental closed system. So the first law of thermodynamics will be del Q upon del T is equal to dE upon dt plus del W by del T. Okay. So the first law of thermodynamics will be del Q by del T is equal to dE by dt plus del W by del T. Okay. So here the del Q by del T is the change in, is the amount of heat added to, and the del W is the work done from this system during the time interval del T. And if we talk about the what is the notification of dE by dt, represent basically the rate of change of internal energy, which consists of local and convective changes. So here we only include, in the case of internal energy, we only includes the potential, and we cannot include the potential energy here, because क्योंकि क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा ये जो सिस्टम है, स्मॉल एलिमेंट है, उस पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो फोर्स की वजह से क्या वर्क भी परफॉर्म हो रहा है. तो वर्क में जो हम बात करते हैं, तो एक तरीके से वर्क के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ रो जी एच, तो जो वर्क पोटेंशियल एनर्जी है वो हम इंक्लूड करेंगे वर्क के अंदर, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑलरेडी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो हम इसको इंटरनल एनर्जी में नहीं इंक्लूड करेंगे. हम इंटरनल एनर्जी में सिर्फ क्या, काइनेटिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के केस में हम इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इंक्लूड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को नहीं इंक्लूड करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन हो गया. अब बात करते हैं, जैसे कि क्लियर ऑल कर देते हैं. फिर उसके बाद अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो रेडिएशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो टेक प्लेस हो रहा है थ्रू ओनली कंडक्शन हो रहा है. ठीक है, क्योंकि सॉलिड बॉडी में हो रहा है. तो ये क्या हम अप्लाई, कंडक्शन का जो गवर्निंग लॉ होता है वो कौन सा होता है, फोरियर्स लॉ. ठीक है, फोरियर्स लॉ होता है. तो हम फोरियर्स लॉ अलोंग द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ अगर हम देखें प्रीवियस स्लाइड में, अगर मैं इस सरफेस को
यहाँ आप देखिए इस सरफेस के अलोंग जो है हम फ्लक्स अप्लाई, फोरियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा सरफेस है? ADHE, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनपुट हो गया, यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा QX along the direction of X, that is become माइनस के dt/dx del t/del x डेल्टा y डेल्टा z। जो हमारा एरिया कवर हो रहा है, जो पोर्शन फेस है वो कौन सा है? डेल्टा y और डेल्टा z, ठीक है। इसी तरीके से हम हीट कंडक्शन, द रेट ऑफ हीट कंडक्शन आउट लिखेंगे फॉर द एलिमेंट जो हमारा एग्जिट एलिमेंट था। उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे और हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा QX प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू QX प्लस डेल बाई डेल एक्स QX डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट कर दिया है। अब जो हो गया, ये इन हो गया, ये आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें नेट जो हीट कंडक्शन, रेट ऑफ हीट कंडक्शन निकालना है। तो वो सिंपली हम इनपुट से आउटपुट को माइनस कर देंगे। तो QX माइनस QX प्लस डेल बाई डेल एक्स QX डेल्टा एक्स लिख लिया। अब यहाँ सिंपली QX कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचा रह गया। तो ये टर्म हो गया। अब इस टर्म में हमने यहाँ से जो पहली इक्वेशन थी वहाँ से हमने QX की वैल्यू पुट कर दी और हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगा हमें नेट रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो मिलेगा वो होगा डेल बाई डेल एक्स के डेल टी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि डेल वी क्या है। जो डेल वी जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट हो गया। सिमिलरली हम जो बाकी वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के लिए लिख लेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा नेट रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो होगा वो वाई डायरेक्शन में डेल अपॉन डेल वाई के डेल टी बाई डेल वाई डेल्टा वी हो जाएगा। और साथ में ही जो हमारा जो नेक्स्ट जो z डायरेक्शन में होगा, इट विल बिकम डेल बाई डेल z के डेल टी अपॉन डेल z डेल्टा v हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी कंबाइन, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे जो हमारे सरफेस के हैं, तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन इनटू द एलिमेंट ड्यू टू ऑल द सरफेस बिकम, हमने क्या किया, सिंपली सारे एक्सप्रेशन को एडअप कर लिया। जो हमारा हीट कंडक्शन पूरे सरफेस पे पड़ रहा है, तो हमारे पास जो एडिशन करने पे तीनों सरफेस का हमारा ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वो होगा डेल क्यू बाई डेल टी और ये पूरा एडिशन टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास ये वाला टर्म थर्मोडायनेमिक्स में डेल क्यू बाई डेल टी वाला टर्म हमें मिल गया, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे जो इंटरनल एनर्जी जो कंप्राइज कर रहे हैं हम इंटरमोलिकुलर एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम कौन सी एनर्जी इंक्लूड करेंगे, मैंने बताया आपको इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो हमारा जो एलिमेंट है, फ्लूइड एलिमेंट है, जो उस पर क्या है, किस टाइप के जो सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो फोर्सेस अप्लाई होने की वजह से क्या वर्क डन उस पर हो रहा है, तो फोर्स इस पर एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखें, फॉर्मूला देखें, रो जी एच होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ वर्क में इंक्लूड हो रहा है, तो हम जो है बेसिकली तो इसको हम वर्क के साथ इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, जो हमारी एनर्जी चेंज, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंपली हम क्या करेंगे, रो टाइम्स एनर्जी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो रो टाइम एनर्जी इनटू वॉल्यूम हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, रो इनटू एनर्जी इनटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में है, तो इसी तरीके से अगर हम फाइनल, ये तो हो गया इनलेट के लिए, ठीक है, और इग्निशियल के लिए, ठीक, ये सिंपल। अगर हम फाइनल जो हमारा फाइनल एनर्जी जो हमें मिल रही है सिस्टम में, कंट्रोल वॉल्यूम में, वो क्या होगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं क्लीन अप करके लिख देती हूँ, वो हो जाएगी रो इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और प्लस डेल ऑफ डेल टी, ये मैंने टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया और हायर ऑर्डर को उसको
रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, डेल्टा Z, ठीक है। ये हमारा फाइनल हो गया और इससे पहले वाला इनिशियल हो गया था। अगर फिर उसके बाद फाइनल इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो होगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा डेल बाई डेल टी रो ई डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z और डेल्टा t, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो E की टर्म्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, जो इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रखने पे क्या मिल जाएगा हमें, जैसे डेल्टा T और ये हो जाएगा रो U प्लस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर अपॉन 2 और इसके अंदर वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। अब ये जो टर्म है हमारा, ये U V W, ये जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यही जो एक्सप्रेशन था मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड होके ये इन्होंने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे E जो है वो स्पेसिफिक इंटरमोलिकुलर एनर्जी है, U V W रिस्पेक्टिवली, जो XY डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी है, ठीक है, और DW डेल्टा W जो है वो वर्क डन है। अब जो है अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो वो रेट ऑफ चेंज विल बिकम नेगेटिव एंड इफ एनर्जी इंक्रीजेज द रेट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब जो है हम कंसीडर करेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको हीट के लिए और ये हमने एनर्जी के लिए निकाल लिया। अब लेट अस डिटरमाइन द वर्क डन अगेंस्ट द कंपोनेंट सिग्मा XX। सिग्मा XX इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस है हमारा, ये क्या होगा, एक स्ट्रेस भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब जो है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इससे पहले अगर आप SK सोम बुक देखेंगे इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र, तो ये 7th चैप्टर में आपको एनर्जी इक्वेशन समझाया गया है। अगर आप 6th चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे मोमेंटम इक्वेशंस दिखाई गई हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से स्ट्रेस बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप डेल W सिग्मा x, जो x डायरेक्शन में जितनी भी स्ट्रेस है वो उसको बैलेंस करके हमने यहाँ पे लिखा है और हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये उस 6th चैप्टर के थ्रू हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। तो आप यहाँ पे डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है मे बी, क्योंकि इससे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे ये मैं अभी आपसे और फैकल्टी से डिस्कस करके, क्योंकि न्यूली एडेड हुआ है तो मैं डिस्कस करूँगी, फिर ही बताऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पुट डाउन होंगे, ठीक। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया। अब जो नेगेटिव साइंस यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द वर्क एडेड टू द फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम आउटसाइड इज़ नेगेटिव कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर फैशन में हमने जो स्ट्रेस को है वो सारे डायरेक्शन के लिए लिख लिया, x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए और z डायरेक्शन के लिए। तो इन दैट केस जो चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हो जाएगा, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ वर्क हो गया। तो हमारे पास रेट ऑफ वर्क जो हो गया अलॉन्ग द x डायरेक्शन, x y z direction with respect to their stresses, it will become minus delta v del by del x u sigma xx plus v tau xy। जो ये है सिग्मा xx है वो जो है नॉर्मल स्ट्रेस है और tau xy जो है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो अगर हम x डायरेक्शन में बात करें तो नॉर्मल जो स्ट्रेस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, x में, और टेंजेंशियल जो स्ट्रेस होगा यानी कि वो x y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में होगा। इस सिमिलरली अगर हम y डायरेक्शन में बात करें तो जो टेंजेंशियल जो स्ट्रेस होगा वो किसमें होगा, x और z डायरेक्शन में होगा, और नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो y डायरेक्शन में होगा। अगर हम z डायरेक्शन में बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो z डायरेक्शन में होगा और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है x और y डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे डिनोट भी क्या रखा है कि सिग्मा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस को और टॉ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली इसको कुछ नहीं, डिफरेंशियल फॉर्म को ओपन करके रीअरेंज करके इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है।
अब इसको क्लीन करके हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बाय मेकिंग यूज़ ऑफ इक्वेशन, अब देखिए मैंने बताया कि जो ये इसमें इस एक्सप्रेशन में जो हमारा है जो एनर्जी इक्वेशन है, इससे पहले हमको मोमेंटम इक्वेशन पढ़ना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, नहीं पढ़ा हमने इक्वेशन क्योंकि ये न्यूली एडेड टॉपिक है। तो सिलेबस को कवर करने से पहले मैं जो न्यू टॉपिक है वो कवर कर रही हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि से जो इक्वेशंस जो थी, जो 6th चैप्टर में जो इक्वेशंस थी उसको सब्स्टिट्यूट करके जो हमारे प्रीवियस इक्वेशन था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, और सॉरी जो प्रीवियस इक्वेशन था हमारा उसको सिंप्लीफाई करके हमने इस एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया, दैट इज़ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी रो यू डी यू बाई डी टी प्लस रो वी डी वी बाई डी टी प्लस रो डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी टी प्लस एम। देखिए क्या किया है, सिंपली कुछ किया नहीं है, यहाँ पे जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव थे उसको टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर दिया है। देखिए टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ m जो इंक्लूड किया है इक्वेशन को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए m जो है उसको हमने सिंप्लीफाई, जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरे टर्म को, ठीक है। और सिमिलर सब्सटीट्यूट किया हमने स्ट्रेस कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ रेट स्ट्रेन कंपोनेंट फ्रॉम द इक्वेशन जो 6th चैप्टर में इक्वेशन है, और उसके अकॉर्डिंग जो m को हमने फिर से रिड्यूस किया और वो इसको बना दिया हमने माइनस पी डी यू बाई डेल एक्स प्लस डी वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस म्यू और साई। और ये जो साई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिसिपेशन फंक्शन को, और वो इस पूरे टर्म से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है 7.7b इज़ द इक्वेशन नोन एज दिस डिसिपेशन फंक्शन एंड टर्म, जो ये जो पूरा टर्म है हमने यहाँ अगर हम देखें, ये मैं इसको सिर्फ यूज़ कर दूँ तो क्या हो गया, म्यू और फाई जो साई जो है टर्म है फाई, वो फिजिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ बीइंग डिसिपेटेड बाय द फ्लूइड फ्रिक्शन दैट इज़ विस्कोसिटी इनटू द इंटरमोलिकुलर एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है इक्वेशन 7.2, 7.3, 7.5 और 7.7a को हमने सारी इक्वेशंस को हमने किस में इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे, जो हमारी जो थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन था उसमें हमने पुट डाउन किया, और हमारे पास जो है ये इक्वेशन फाइनली ये आ जाएगी, ठीक है। रो डी ई बाई डी टी प्लस रो डेल्टा नॉट वी इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स के डेल टी, ये पूरा जो है कंडक्शन टर्म्स, और पूरा ये एक्सप्रेशन हमारा रिड्यूस होके यहाँ पे आ गया। अब जब v होगा, जो हम उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आई यू प्लस जे वी प्लस के डब्ल्यू हो जाएगा। अगर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करें, जो E जो है, अगर हम एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी को हम बात करें तो h माइनस पी अपॉन रोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो है h जो है वो स्पेसिफिक इंथैल्पी है, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफिक इंथैल्पी है। अब जो ये टर्म है डी ई बाय, यहाँ देखिए आप इक्वेशन में डी ई बाई डी टी, ठीक है। अगर हम इस टर्म को जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा डी एच बाई डी टी माइनस, अब जो ये एक बार रो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार क्या पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 अपॉन रो डी पी बाई डी टी आ गया जब हमने पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और रो को कांस्टेंट ले लिया। अब जब हमने नेक्स्ट हम ले रहे हैं पी को कांस्टेंट और रो को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पी अपॉन रो स्क्वायर डी पी बाई डी टी, ठीक है। अब जो है, अब जो मोमेंटम इक्वेशन जो 6th चैप्टर और 5th चैप्टर है इस बुक का, उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी एक्सप्लेन की गई है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस सिग्मा डेल्टा नॉट रो वी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या इस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें तो ये एक्सप्रेशन इस टाइप का हो जाएगा, और यहाँ से हमने डी पी बाई डी टी की वैल्यू निकाली क्या, माइनस रो डेल्टा
v, ठीक है। अब यहाँ dp/dt की वैल्यू हमने d ρ/dt की वैल्यू हमने यहाँ पुट डाउन कर ली, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक है। क्लियरली आपको दिखा देती हूँ कि क्या एक्सप्रेशन आएगा आपका। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड रब करके, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा ये हमारा हाईलाइटेड पोर्शन हमारा आ जाएगा dE/dt इज इक्वल टू dH/dt माइनस 1/ρ dP/dt माइनस P/ρ डेल्टा V। तो यहाँ पे हमने dE/dt को सब्सटीट्यूट करना है फ्रॉम इक्वेशन 7.10 इंटू द 7.8, ये जो वैल्यू आई, ठीक है। अब हम बेसिकली किस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, 7.8 इक्वेशन में। अब 7.8 इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, दैट इज ρ dH/dt इज इक्वल टू del/del x k del t/del x प्लस del/del y k dt/del y प्लस d डेल्टा del z k del/del z k del, ठीक है। आप समझ जाइए, बहुत बार del हो गया तो मेरा टंग ट्विस्ट हो गई है, तो इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फाई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन इन दी, इसकी वैल्यूज़ जो है हमें पहले पता चल गई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आइडियल गैस के कंडीशंस की और लिक्विड की, उस केस में जो वेक्टोरियल फॉर्म हमारी जो इक्वेशन 7.11 जो होगी वो ये फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में चेंज रखें तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, ठीक। इसका डेरिवेशंस तो नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड से आपको लेके चल रही हूँ। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है एक और चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, जैसे हमारे पास हमने ये वेक्टोरियल फॉर्म में चेंज कर लिया है, तो ये एक्सप्रेशन उसका डेल का आएगा, तो ये कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस एनर्जी इक्वेशन को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए लिखें, फ्लो के लिए, तो हमारे पास कंडक्टिव फ्लो के लिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन होगा मतलब और अगर हम स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी इक्वेशन का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन एंड द ये है, तो उस केस में हमारी एनर्जी इक्वेशन ये जो हो जाएगी, बिकम हो जाएगी कौन सी, थोड़ा सा मेरा मोबाइल भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। और इस टर्म में ये एक्चुअली तो आपके टर्म का जो काम की चीज़ थी एनर्जी इक्वेशन तो हमने पहले ही प्रीवियसली निकाल ली, लेकिन मैं आपको एक एक्यूरेट नंबर को दिखाना चाहती हूँ कि इस एक्सप्रेशन से एक्यूरेट नंबर, तो ये एक बार और आप नंबर को थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ u∞² CP डेल्टा T0 इज इक्वल टू, जो एक्यूरेट नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए लिखा है EC से। अगर जो ये केस है, अगर द टर्म u∞² 2/Cp जो है रिकोगनाइज्ड एज अ टेम्परेचर इंक्रीज थ्रू द एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा, तो उस केस में एक्यूरेट नंबर ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये पूरा ऑल अबाउट था किसके बारे में, हमारे एनर्जी इक्वेशन के बारे में। और एनर्जी इक्वेशंस जो है, जो इसको अगर मैं समराइज़ करूं तो समराइज़ करने पे ये होगा कि द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लूइड स्ट्रीम नियर a solid surface is obtained from the equation of conservation of energy that is known as energy equation। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं फ्लूइड स्ट्रीम का सॉलिड सरफेस के नियर जो है उसका हम देखने के लिए हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, और साथ में हम ऑब्टेन करेंगे किससे, एनर्जी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जिसको हम कह रहे हैं क्या, एनर्जी इक्वेशन। और हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशंस कौन सी आई है, ये मैंने आपको बताया, हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन ये वाली आई है, इसमें डिसिपेशन फंक्शन ये है, फिर जो हमारा
फाइनली जो एज अ ऑब्जर्व फ्रॉम द एनर्जी इक्वेशन टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें ये 3 डायमेंशनलेस पैरामीटर्स हैं, रेनॉल्ड नंबर, प्रेंटल नंबर, एप्सिलॉन नंबर और कार्टेशियन 2 डायमेंशनल जो हमारा एनर्जी इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड किया गया है थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए, तो वो उसको कहलाता है थर्मल बाउंड्री लेयर इक्वेशन। तो वो 2 डायमेंशन के लिए ये है। तो ये सारी चीज़ें थी एनर्जी बैलेंस के इक्वेशन के बारे में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे या थ्योरी टाइप का कुछ आएगा, वो मैं आपके से बाद में डिस्कस करूँगी। तो हीट ट्रांसफर में बस एक ही टॉपिक ऐड हुआ था, वो था एनर्जी इक्वेशन, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस पे मैं कुछ फैकल्टीज़ से या थोड़ा कांटेक्ट करके देखूंगी किसी से कि न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आएंगे, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा दूंगी। तो टिल देन अगर आपने को मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। और टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।